Hello friends, I Neha welcome you all on my YouTube channel Aim High Tutorials. Friends, today we are going to read the first chapter of Supplementary Reader English book Moments of NCERT Standard 9th. The name of this story is The Lost Child. But before we start the story, let's discuss a few facts about the author of this story. The author of this story is Mulk Raj Anand. He was born on December 12, 1905 in Peshawar, Pakistan. He died on 28 September 2004 in Pune, India. As a professional, he was an eminent writer. He was awarded with Sahitya Akademi Award in 1971 and Padma Bhushan Award in 1967. Here I have written etc. It means that except these two awards, he was awarded with several awards for his writing skills. Friends, now we are going to start the story. The Lost Child. खोया बच्चा. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वह खुश है, उत्साहित है और वहाँ जितने भी खिलौने और मिठाइयाँ हैं वो उन सभी को पा लेना चाहता है. But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके माता पिता उसके लिए वे चीज़ें नहीं खरीदते. Why then does he refuse when someone else offers them to him? फिर जब कोई दूसरा उसे वो चीज़ें दिलाने की बात कहता है तो वो इनकार क्यों कर देता है? It was a festival of spring. वसंत का त्योहार था. From the wintry sheds of Narrowlands and alleys emerged a gaily clad humanity. ठंड धीरे धीरे सकरी गलियों से होके अब जाने लगी थी. चारों तरफ खुशहाली का माहौल था. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग पैदल, कुछ लोग घोड़ों पे सवार होके, कुछ लोग पालकियों में सवार होके और कुछ लोग बैलगाड़ियों पे सवार होके चले जा रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ साथ खुश होते हुए जीवन से भरपूर जीवंत लगते हुए मेले की तरफ बढ़ता चला जा रहा था. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. उसके माता पिता ने आवाज़ दी, बच्चे इधर आओ, क्योंकि वो उनके पीछे छूट गया था. और वह पीछे इसलिए छूट गया था क्योंकि रास्ते में पड़ने वाले जो भी खिलौने और खिलौनों की दुकानें थे उन्हें वो देख रहा था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. उसने जैसे अपने माता पिता की आवाज़ सुनी वह तुरंत उस तरफ मुड़ गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन खिलौनों पे ही टिकी हुई थी. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. वे लोग जहाँ उसका इंतज़ार करते थे वहाँ पहुँचने के बाद उससे अपने दिल की जो इच्छा थी उसे दबाया नहीं गया. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. यद्यपि कि वह जानता था कि उसे इनकार ही मिलने वाला है. उनकी आंखों को देख के ही उसे ये बात महसूस हो रही थी. I want that toy, he pleaded. उसने कहा, मुझे वह खिलौना चाहिए. His father looked at him red-eyed. उसके पिता जो थे उन्होंने लाल आंखें करते हुए उसे देखा इन हिज फेमिलियर टीरेंट्स वे, जैसा कि वो हमेशा उसके साथ करते थे. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said. उसकी माँ का ये उसकी बात सुन के दिल पसीज गया. उन्होंने उसे अपनी उंगली देते हुए कहा, Look child, what is before you? बच्चे देखो, तुम्हारे सामने क्या है? It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. उसके सामने सरसों के खेत थे और उन्हें देख के लग रहा था मानो कि सोना जो है वो पिघला जा रहा है, पिघलते हुए सोना फैल रहा है, क्योंकि वो जो खेत थे वो मीलों की दूरी में फैले हुए थे. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ड्रैगन फ्लाइज का एक जो समूह था वो ब्लैक बीज को और जो तितलियां थीं उन सभी को
बीच में से ही रोकते हुए, उनके बीच से गुजरते हुए वे सभी क्या कर रहे थे? फूलों से मधुरता, मिठास पाने की कोशिश कर रहे थे, फूलों में मिठास ढूंढ रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद गेज till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. बच्चा जो था हवा में देखते हुए ही उनका अनुसरण करने लगा और उसे इस बात का इंतज़ार था कि उनमें से कोई भी अपने पंखों को फड़फड़ाना रोकेगी और आराम करेगी, तब तक वो उसे पकड़ लेगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ में उसे भरने की कोशिश की, लेने की कोशिश की, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। तब उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी आवाज़ में उसे कहा, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। बच्चे इधर आओ, पगडंडी की ओर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. बच्चे ने जैसे ही अपने माता पिता की आवाज़ सुनी, वो उनकी तरफ बढ़ गया और जल्दी ही वे जो कीड़े मकोड़े थे छोटे छोटे, वो पीछे छूट गए। लेकिन फिर भी बच्चा उनसे आकर्षित था और वो अभी भी उन्हें ही देख रहा था और उसे ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कि ये सारे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वे अपने छुपने की जगह से झांक झांक के सूरज की रोशनी का आनंद ले रहे हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। उसके माता पिता ने आवाज़ दी, बच्चे इधर आओ, और वे लोग एक उपवन की छाया में पहुंच गए जहां उन्होंने खुद को एक कुएं की दीवार से लगा के बैठा लिया। मतलब खुद ही वे लोग कुएं की दीवार से लग के बैठ गए। ही रैन टूवर्ड्स देम, बच्चा उनकी तरफ दौड़ा। अ शार ऑफ यंग फ्लावर्स फिल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही बच्चा उस उपवन की तरफ बढ़ा, उसके ऊपर बहुत सारे ताज़े फूल गिरे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और अपने माता पिता को भूल के वो उन सारे पंखुड़ियों को जो गिर रहे थे उसे बटोरने लगा। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting. लेकिन तभी क्या हुआ, उसे डव चिड़िया का कुंजन सुनाई दिया और वो अपने माता पिता की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ा, द डव, द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और जब वह डव डव करता हुआ अपने माता पिता की तरफ दौड़ा तो उसके हाथों से ये जो पंखुड़ियाँ थीं वो गिर गईं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। उन्होंने कहा, बच्चे इधर आ जाओ। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. बच्चा जो था वो अपने माता पिता का अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगा और इस दौरान जो बनियान ट्रीज थे उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, कूदते फांदते वो फुटपाथ की तरफ बढ़ गया। फिर उसके माता पिता उसे उस फुटपाथ से लेकर के सरसों के खेत से के बगल से जाने वाले रास्तों से होते हुए आगे बढ़ने लगे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जब वो गांव के नज़दीक पहुंचे तो बच्चे ने देखा कि कई सारे ऐसी पगडंडियां हैं जहां से लोगों की भीड़ चली आ रही है, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। और ऐसे लग रहा है जैसे लोगों के उस झुंड से मेले में एक भंवर सा बन गया है। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जो इस नई दुनिया में वो प्रवेश कर रहा था तो उसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य, एक्साइटमेंट और संशय हुआ। A sweetmeat seller hawked गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. एक मिठाई वाला जो था वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। जहाँ पे कि प्रवेश था, मेले में जाने के लिए जो प्रवेश स्थान था, वहीं पे एक मिठाई वाला अपनी मिठाइयों के लिए वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। लोगों की भीड़ उसकी दुकान के पास इकट्ठी भी थी और उसकी मिठाइयों को देख के लग रहा था जैसे मिठाइयों का कोई बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बना दिया गया हो, कोई भव्य इमारत बना दी गई हो
और वो जो मिठाइयाँ थीं उन पे सिल्वर और गोल्ड का वर्क था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चे के मुंह में बर्फ़ी को देख के पानी आ गया क्योंकि बर्फ़ी उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बुदबुदा के कहा, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन उसे मन ही मन ये पता था कि उसकी इस विनती को नहीं सुना जाएगा, नहीं स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसा कहेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए ही वह आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। एक फूल बेचने वाला ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, गुलमोहर की माला, गुलमोहर का हार। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. बच्चा न चाहते हुए भी उधर खिंचा चला गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. बच्चा उस फूलों से भरी हुई टोकरी की तरफ बढ़ गया और धीरे से बुदबुदाया, मुझे वह फूलों का हार चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन उसे पता था कि उसके माता पिता वे फूल या उनका हार खरीदने से इनकार कर देंगे क्योंकि शायद वो ऐसा कहेंगे कि ये फूलों का हार बेकार है, किसी काम का नहीं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए ही वह आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी अपने साथ एक पोल, एक छोटा पतला सा खंबा लेके खड़ा था जिस पे बहुत सारे पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे, उससे लग के लहरा रहे थे हवा में। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल। बच्चा इन गुब्बारों के, इन इंद्रधनुषी गुब्बारों को देख के उनके तरफ खिंचा चला गया और वो चाहता था कि वो उन सभी गुब्बारों को ले ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। लेकिन बच्चा जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए ये बलून्स नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनका शायद ये कहना होगा कि अब वह इतना छोटा नहीं रह गया है कि वो बलून से खेले, गुब्बारों से खेले। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सपेरा जो था वो बीन बजा रहा था एक सांप के लिए जो सांप बास्केट में खुद को गोल गोल लपेटे हुए बैठा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. उसका जो सिर था वो कुछ इस तरीके से निकला था मानो कि एक हंस की गर्दन हो। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. उसके कानों में ये जो सुर था, ये जो धुन थी, वो ऐसे जा रही थी उसके अदृश्य कानों में मानो कि कोई अदृश्य वाटरफॉल हो। The child went towards the snake charmer. बच्चा सपेरे की ओर बढ़ गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. लेकिन तभी उसे इस बात की याद आई कि उसके माता पिता ने उसे इस तरह की धुन सुनने से मना किया है जैसा कि सपेरा बजा रहा है, इसलिए वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। एक गोल चक्कर झूला था जो कि बहुत तेज़ी से नाच रहा था। मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन। आदमी, औरतें और बच्चे उस पर बैठ के झूल रहे थे और वो इतनी तेज़ घूम रहा था मानो कि कोई भंवर हो। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। उसमें कुछ लोग हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे और खुश थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा जो था उसने उन्हें देखा और पूरा इरादा बना के, अपना इरादा मजबूत करते हुए उसने कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। माँ, पिताजी, मैं उस राउंड अबाउट पे, मैं उस झूले पे जाना चाहता हूँ, चढ़ना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई। कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वह पीछे मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर। वे लोग वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम,
उसके आसपास वे लोग नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, उसने अपने बगल में देखा। दे वेंट नॉट देयर, सॉरी दे वर नॉट देयर, वे लोग वहाँ भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसने पीछे देखा लेकिन वहाँ उनका कोई निशान भी नहीं था। अ फुल डीप क्राई rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" अब उसका गला बिल्कुल सूख गया और उसका गला रूंध गया, उसका गला भर गया। वो रोना चाहता था। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन उसने महसूस की और वो जहाँ खड़ा था वो वहाँ से हट के इधर उधर भागने लगा और साथ ही साथ वो चिल्लाता भी रहा, माँ, पिता, पिताजी। Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, hot and fierce. उसकी आंखों से गर्म आंसुओं की धारा बह रही थी। His flushed face was convulsed with fear. उसके चेहरे पे, जो चेहरा आंसुओं से भर गया था, धुल गया था, उस पे डर साफ साफ दिख रहा था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other side. डर की वजह से वो एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ भागा। Hither and thither, in all directions. सभी दिशाओं में वह इधर उधर भागता रहा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, लेकिन उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाए कहाँ। मदर, फादर, ही वेल्ड, और वो बोलता रहा, माँ, पिताजी। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। उसकी पीली पगड़ी जो थी वो ढीली पड़ गई थी और उसके कपड़े गंदे हो गए थे। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. इधर उधर दौड़ के अब वो हारा हुआ सा महसूस करने लगा और उसका रोना अब सुबकियों में बदल गया। At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. कुछ दूरी पे घास पे कुछ पुरुष और स्त्रियां बैठ के बातें कर रहे थे, उसने यह देखा। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. उसने कोशिश की, उसने यह ध्यान देने की कोशिश की कि शायद उन्हीं में वो अपने माता पिता को ढूंढ लेगा, लेकिन उसे वो लोग वहाँ भी नहीं दिखे। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और उन लोगों को देख के लग रहा था कि वे लोग सिर्फ बातें करने, हंसने और खुश रहने में ही व्यस्त हैं। He ran quickly again. वह एक बार फिर तेजी से दौड़ा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस बार वह एक मंदिर की तरफ दौड़ा जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। Every little inch of space here was congested with men. यहाँ लोगों की इतनी भीड़ थी कि वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं थी। But he ran towards people's leg. लेकिन वो लोगों के पैरों से टकराते हुए दौड़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। His little sob lingering. और सुबकियों के साथ वह बोलता रहा, मदर, फादर, माँ, पिताजी। वो सुबकते हुए ये भी बोलता रहा, माँ और पिताजी। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. जब वो मंदिर के नज़दीक, मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ भीड़ और भी ज़्यादा थी। Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. कुछ लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, धक्का देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. बच्चे ने बहुत संघर्ष किया कि वो वहाँ से आगे बढ़े और उसे उन लोगों के मूवमेंट से, उन लोगों के इधर उधर आने जाने की वजह से बार बार किक लग जाती थी, उसे धक्का लग जाता था। He might have been trampled underfoot. ऐसे लगा कि शायद वो उनके पैरों के नीचे भी दब जाए। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice. और अगर वो ज़ोर से नहीं चिल्लाता तो शायद ऐसा ही होता, फादर, मदर। उसने चिल्लाया, माँ, पिताजी, माँ। A man in the surging crowd heard his cry, and stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. एक आदमी उसी भीड़ में से, उसने उस बच्चे की आवाज़ सुन ली और उसे बहुत मुश्किल से अपने बाहों में उठा लिया। How did you get here, child? बच्चे, तुम यहाँ कैसे आ गए? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass. जैसे ही वे लोग भीड़ से कुछ अलग हुए, उस आदमी ने यह प्रश्न उससे पूछ लिए। The child wept more bitterly than ever, now and only cried.
बच्चा अब पहले से भी ज़्यादा रोने लगा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। आदमी ने उसे शांत कराने के लिए उसे उस गोल चक्कर झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। जैसे ही वे लोग रिंग के पास पहुंचे, उसने बहुत प्यार से पूछा, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड। बच्चा जो था, उसके मुंह से हजारों की संख्या में सुबकियां एक साथ निकलने लगी और उसने चिल्लाते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. आदमी जो था वो अब सपेरे की तरफ जाने लगा, जो कि अभी भी उस सांप के लिए, उस नाग के लिए बीन बजा रहा था। Listen to that nice music, child, he pleaded. उसने कहा, बच्चे, उस सुंदर धुन को सुनो। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. लेकिन बच्चे ने दुगुनी तेजी से, पहले तो उसने अपने कानों को अपनी उंगलियों से ढक लिया और उसने अपनी आवाज़ से दुगनी आवाज़ में चिल्ला के कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। आदमी जो था वो उसे गुब्बारों की तरफ ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वेंटन हिम। यह सोचते हुए कि शायद इन गुब्बारों के रंगों को देख के थोड़ी देर के लिए बच्चे का ध्यान इस बात से हट जाएगा और वो खुश हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? ही परसुएसिवली आस्क्ड। उसने विनती करते हुए कहा, आग्रह करते हुए कहा कि क्या तुम इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा लोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। बच्चे ने उन उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी नज़र फेर ली, अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, उसने सुबकियाँ लेते हुए कहा, I want my mother, I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. आदमी जो था अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश में लगा था, इसलिए वह बच्चे को गोद में उठा के उस फूल बेचने वाले की तरफ पहुंच गया। Look, can you smell those nice flowers, child? बच्चे, क्या तुम इन खूबसूरत, सुंदर, खुशबूदार फूलों की महक को महसूस कर पा रहे हो? Would you like a garland to put round your neck? क्या तुम उनमें से एक हार अपने गले में पहनना चाहोगे? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. बच्चा जो था उसने अपनी नाक फूलों की टोकरी से हटाते हुए दूसरी तरफ घुमाते हुए सुबकियाँ लेते हुए कहा, I want my mother, I want my father. मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. आदमी जो था उसने सोचा कि शायद मिठाइयों की दुकान पे अगर वो लेके जाए और बच्चे को मिठाइयाँ दिलाए तो शायद बच्चा शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा। What sweets would you like, child? He asked. उसने पूछा, बच्चे, तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, सुबकियाँ लेते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। बाय मुल्कराज आनंद। फ्रेंड्स, here we can see that whatever things we have, sometimes we don't give importance to the things which are present with us. But when we lose those things, we get attracted and we start thinking about the importance of the things we had earlier. जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, खास करके हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें लगता है हम दूसरी चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इस कहानी को पढ़ के हमने देखा कि जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारे, ये सारी चीज़ें चाहता था, अब उसके माता पिता के सिर्फ ना मिलने पे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मिस कर रहा था और ये सारी चीज़ों को भूल चुका था। So here the moral of the story is that the things whatever we are, we have, whatever relations and relatives or parents or family, whatever we have, we must give importance to them and always be very, very thankful to them. I hope
आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्प करेगा. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. Friends, if you have any problem, you can let me know in the comment box. I will try my level best to shorten out your problems. Thank you for watching.